السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں سید ارشد سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیٹوریل اوشوز۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں ویب سائٹ بیک اینڈ ڈیولپمنٹ وتھ PHP MySQL کی ایک نئی سیریز۔ اسٹوڈنٹس، اگر آپ لوگ بیک اینڈ ڈیولپر بننا چاہتے ہیں، آپ بیک اینڈ ڈیولپمنٹ کی فیلڈ میں اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے یہ ویڈیو سیریز بہت اہم ہونے والی ہے۔ اس ویڈیو سیریز میں ہم PHP with MySQL کے ذریعے بیک اینڈ ڈیولپمنٹ کے کورس کو ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا اس کیریئر بیک اینڈ ڈیولپمنٹ فیلڈ میں بنا سکیں، PHP اور MySQL کو اچھے انداز میں سیکھ سکیں، تو یہ ویڈیو سیریز آپ کے لیے، ٹیٹوریل سیریز آپ کے لیے بہت اہم ہونی ہے۔ تو دوستو، اس سیریز کو باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل ٹیٹوریل اوشن کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیجئے تاکہ اس ویڈیو سیریز سے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ان ٹائم ملتا رہے۔ دوستو، سب سے پہلے تو ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ بیک اینڈ ڈیولپمنٹ کہا کسے جاتا ہے، بیک اینڈ ڈیولپمنٹ سے کیا مراد ہے۔ Backend development. What is backend development? Backend development refer to the server-side development. It is the term used for the behind-the-scene activities that happen when performing any action on a website. یعنی دوستو، اگر آپ لوگ ویب سائٹ کی فیلڈ سے وابستہ ہیں اور ویب ڈیزائننگ کے کورسز آلریڈی آپ کر چکے ہیں تو یہ کورس آپ کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ جو لوگ ویب سائٹ ڈیزائننگ کے حوالے سے کام کرتے ہیں وہ بخوبی واقف ہیں کہ ویب سائٹ دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک ویب سائٹس کو ہم اسٹیٹک ویب سائٹ کہتے ہیں اور ایک ویب سائٹ کو ہم ڈائنمک ویب سائٹ کہتے ہیں۔ اسٹیٹک ویب سائٹس وہ ویب سائٹس ہوتی ہیں جو کہ پلین HTML پر مشتمل ہوتی ہیں، اس کے جو لے آؤٹ ہوتے ہیں وہ چینجیبل ہوتے ہیں، آپ اس کو کسی بھی حساب سے چینج کر سکتے ہیں، لیکن ان کو اپڈیٹ کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس کے برعکس ڈائنمک ویب سائٹس سے مراد وہ ویب سائٹس ہوتی ہیں جو کہ کسی ڈیٹا بیس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہیں۔ یعنی ڈائنمک ویب سائٹس کو بنانے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں بیک اینڈ ڈیولپمنٹ، یعنی بیک اینڈ سائٹ پروگرامنگ کرتے ہیں، جس کا تذکرہ ہم اپنی اس ڈیفینیشن میں کر رہے ہیں کہ بیہائنڈ دی سین جو کچھ ایکٹیویٹیز آپ کی ویب سائٹ پر ہو رہی ہوتی ہیں وہ کہلاتی ہے آپ کی بیک اینڈ سائٹ ڈیولپمنٹ۔ یعنی ہم اس کو بیک اینڈ ڈیولپمنٹ کہا جاتا ہے، جو کہ عموماً یوزر سے، جو ویور ہوتا ہے، جو ویب سائٹ دیکھنے والا ہوتا ہے، اس کا اس سے تعلق نہیں ہوتا۔ اس کا تعلق ویب سائٹ کے ڈیولپر سے، یعنی ویب سائٹ کے اونر سے، جو اس ویب سائٹ کو آرگنائز اور مینٹین کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کا کام اس ویب سائٹ سے، یعنی بیک اینڈ ڈیولپمنٹ سے ان کا ڈائریکٹلی کنیکشن یا واسطہ ہوتا ہے۔ اس کورس میں ہم جو بیک اینڈ ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں، بیک اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے ہم جو پروگرامنگ لینگویج یا ویب پروگرامنگ لینگویج استعمال کرنے والے ہیں اس کا نام ہے PHP۔ تو ہم یہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ PHP کیا ہے۔ دوستو، یہ ہمارے اس ویڈیو سیریز کا اوور ویو ہے۔ اس میں ہم شارٹ ڈسکرپشن میں ڈسکس کریں گے، شارٹ باتیں ڈسکس کریں گے۔ صرف اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس کورس سے متعلق اویئر کیا جا سکے، آپ کو اس کی اہمیت بتائی جا سکے کہ یہ جو کورس یا ویڈیو سیریز ہم اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس کی مارکیٹ ڈیمانڈ کیا ہے اور یہ ہمارے لیے کتنی کارآمد ہو سکتی ہے۔ تو ہم ڈسکس کرتے ہیں PHP۔ PHP is a powerful server-side scripting language for creating dynamic and interactive website۔ یعنی PHP ایک ایسی پاورفل سرور سائڈ اسکرپٹنگ ہے جو کہ سرور پر ایگزیکیوٹ ہوتی ہے، جس کے ذریعے ہم ڈائنمک اور انٹریکٹیو ویب سائٹ کریٹ کر سکتے ہیں۔ ڈائنمک ویب سائٹ کو میں نے ابھی آپ کو بریف کیا، مزید انشاءاللہ جب ہم اس پہ کام شروع کریں گے تو میں آپ کو اگزامپل کے ساتھ کچھ پریکٹیکل چیزیں دکھاتے ہوئے ڈائنمک ویب سائٹ کی وضاحت کرتا چلوں گا۔ PHP کے بعد ہمارا جو اس میں سیکنڈ ٹاپک اس ویڈیو سیریز میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے MySQL۔ MySQL is an open source relational database management system۔ تو جو اسٹوڈنٹس پروگرامنگ کی فیلڈ سے وابستہ ہیں، جو پروگرامنگ کو سمجھتے ہیں، ان کو ڈیٹا بیس کا بخوبی اندازہ ہے کہ ڈیٹا بیس کیا ہوتی ہیں۔ ڈیٹا بیس ایک وہ مقام ہوتا ہے جہاں پہ ہم اپنا سارا کا سارا ڈیٹا اسٹور کر رہے ہوتے ہیں۔ تو PHP کے ساتھ MySQL ہم ڈسکس کریں گے، اور MySQL ایک اوپن سورس ریلیشنل ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہے۔ اسٹوڈنٹس، اب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ وائی PHP MySQL، یعنی ہم PHP MySQL کا انتخاب کیوں کر رہے ہیں۔
जब हम बैकएंड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो और भी बहुत सारे नाम हैं बैकएंड डेवलपमेंट के लिए जो आप लोगों ने सुने होंगे, लेकिन अगर हम ये बात करते हैं कि ये बैकएंड डेवलपमेंट के लिए हमने PHP MySQL का इंतखाब क्यों किया और PHP MySQL में ऐसी क्या ख़ास बात है जिसकी वजह से हम अपने बैकएंड डेवलपमेंट के लिए PHP MySQL को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम उसको भी डिस्कस करते हैं। हम थोड़ा मार्केट शेयर और PHP की मार्केट वैल्यूज़ को देखते हैं, मार्केट डिमांड को देखते हैं, जिससे हमें बाखूबी अंदाज़ा होगा कि PHP पर मार्केट में PHP की कितनी ज़्यादा डिमांड मौजूद है। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि जो हमारे पास PHP के हवाले से जो दीगर लैंग्वेजेस हैं उनके मुकाबले में अगर हम PHP को देखते हैं तो PHP जो है आपके पास PHP इज़ यूज बाय 79% ऑफ ऑल द वेबसाइट हु सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी नो, यानी तमाम सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग जिनसे हम वाकिफ़ हैं उन तमाम सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस में 79 मतलब 80% ऑलमोस्ट PHP पर ही वेबसाइट्स क्रिएट की जाती हैं। सर्वर साइड जो स्क्रिप्टिंग वेबसाइट्स होती हैं, डायनेमिक वेबसाइट्स होती हैं, वो 79%, इट्स मीन 80% ऑलमोस्ट हमारी तमाम की तमाम वेबसाइट्स PHP पर ही क्रिएट की जाती हैं। तो अगर आप देखें PHP की अगर बात करें शेयर की तो 79% है, ASP.NET की बात करें तो 9.4% है, रूबी की बात करें तो 4.2 है, जावा 3.2 है, स्केला है आपके पास, स्टैटिक फाइल्स हैं, पाइथन है, जावास्क्रिप्ट है, पर्ल है, इनलार्जिंग वगैरह तमाम लैंग्वेजेस अगर आप गौर करें और तो ये आप देखेंगे कि PHP की जो मार्केट डिमांड है या जो यूजेस है वो 79% है। और ये कोई बहुत पुरानी अपडेट नहीं है डियर फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं 28 नवंबर 2020 28 नवंबर 2020 तक का ये रिसेंट बिल्कुल ग्राफ है जिसमें आप देख सकते हैं कि PHP ने अपनी मार्केट को किस तरह मेंटेन रखा हुआ है। इसी तरह अगर हम इसकी और डिटेल के साथ इसको भी देखें तो आप देख सकते हैं कि हिस्टोरिकल ईयरली ट्रेंड अगर हम चेक करें कि PHP ने किस तरह अपने आप को ग्रो किया है और दीगर लैंग्वेजेस के मुकाबले में, तो आपको 2010 जनवरी में 7.2.5, इसी तरह 11 में 74, 2012 में 76 और ये ग्राफ मुसलसल आप देख सकते हैं कि PHP का जो ग्राफ है वो मुसलसल बढ़ते हुए 79.0 पर हमारे पास ये PHP का ग्राफ इस टाइम मौजूद है। तो अगर हम इस कोर्स को सीखते हैं और इस कोर्स को अगर हम अच्छे तरीके से सीखते हुए मेहनत करते हैं इस कोर्स के ऊपर और प्रैक्टिस में रखते हैं इसको, तो आप बाखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें मार्केट डिमांड कितनी है और मार्केट में हमारे लिए कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ एज ए PHP डेवलपर या बैकएंड डेवलपर हमें मिल सकती हैं। तो दोस्तों इस कोर्स में ये तो मैंने आपको बताया कि इसकी मार्केट डिमांड कितनी है। अगर हम मज़ीद आगे बढ़ें तो इस कोर्स में हमें करना क्या है, हम इस कोर्स में क्या सीखने वाले हैं, PHP MySQL में हमने क्या क्या चीज़ें सीखनी है, तो इसका बस बहुत शॉर्ट इंट्रोडक्शन हम ले रहे हैं। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपको PHP MySQL पे काम करने के लिए सबसे पहली बुनियादी बात तो ये है कि आपको वो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके बारे में मालूमात होनी चाहिए। तो सबसे पहली जो चीज़ है PHP के ऊपर काम करने के लिए या PHP को समझने के लिए, तो हमारे पास सबसे पहली एक ज़बान जिसे हम वेब प्रोग्रामिंग में HTML कहते हैं, तो स्टूडेंट्स आपको HTML आनी चाहिए। अगर आप में से कोई फ्रेंड HTML समझते हैं, HTML की ज़बान अगर उनको आती है तो PHP पे काम करना कदरे आसान और बेहतर हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको बिल्कुल भी HTML नहीं आती तो उसके लिए सजेशन ये होगी कि पहले बेसिक HTML, कोई एडवांस HTML की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत हाई फाई आपको HTML CSS स्टाइल शीट वगैरह आने की ज़रूरत नहीं। बेसिक HTML, आप HTML के बेसिक टैग्स को अगर अंडरस्टैंड करते हैं, बेसिक टैग्स को अगर आप समझते हैं तो आपके लिए PHP पे काम करना आसान हो जाएगा। इसके अलावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हवाले से अगर बात करें, अगर आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ी हुई, अगर आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले नहीं पढ़ी तो फिर भी आप PHP पर बआसानी काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने C++ या C लैंग्वेज या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर काम किया है तो PHP पे भी काम करना आपके लिए बहुत आसान और ईजी हो जाएगा, जिसके ज़रिए आप बहुत जल्दी इसके ऊपर अपनी ग्रिप हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि हमें थोड़ी सी बस HTML आनी चाहिए, बाकी बहुत ज़्यादा एडवांस HTML भी आना इसके लिए ज़रूरी नहीं है। हम इस कोर्स में जो बात करने जा रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स टू एडवांस लेवल, यानी हम बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस से इसको डिस्कस करेंगे।
बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से हम इसको स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक, यानी कंप्लीट एक वेब सीएमएस प्रोजेक्ट, कंप्लीट सीएमएस प्रोजेक्ट हम इसमें डिज़ाइन करना सीखेंगे। सीएमएस क्या है दोस्तों? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, यानी एक ऐसा निज़ाम, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके ज़रिए हम अपनी वेबसाइट के ऊपर मौजूद डेटा को मेंटेन करते हैं। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, इसको भी हम बहुत डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें समझ में आएगा कि हम इसमें क्या क्या काम कर सकते हैं। तो इस PHP के कोर्स में हम कंप्लीट सीएमएस, कोर सीएमएस, यानी अपने हाथों से कंप्लीट सीएमएस, कहीं से बना हुआ नहीं, 100% ज़ीरो से स्टार्ट करके A to Z हम इसी के ऊपर अपना खुद से काम करेंगे। और जब ये कोर्स हमारा फाइनलाइज होने लगेगा तो इंशाल्लाह हम अपने पास एक इस तरह का प्रोजेक्ट में, यानी आप देख सकते हैं कि वेबसाइट एडमिन डैशबोर्ड बनाएंगे, जो आपको एक पिक में नज़र आ रहा है कि हम एक इस तरह का डैशबोर्ड बनाना सीखेंगे, जिसमें हम सारी की सारी वेबसाइट जो हमारी यूज़र को नज़र आ रही होगी तो वो हम उस पर अपडेट कर सकेंगे। तो ये आपके पास एक वेबसाइट नज़र आ रही है, मैंने नेट से पिक उठाई एक टेम्पलेट की, जो आप देख रहे हैं इस टाइम, ये है वेबसाइट यूज़र इंटरफेस, जो कि हमारा विजिटर या व्यूवर देख रहा होता है। और ये हमारे पास वेबसाइट का एडमिन डैशबोर्ड है, जो हम या वेबसाइट का ऑर्गेनाइजर या ओनर जो है वो इसको अरेंज कर रहा होता है। हम इस साइट से डेटा अरेंज करते हैं और वो डेटा हमारी इस वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले होता हुआ हमें यहाँ पे नज़र आता है। तो दोस्तों हमारा ये ओवरव्यू है एक मुख्तसर सा, जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि हम इस कोर्स में क्या करने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो प्रोग्रामिंग की फील्ड में या वेब प्रोग्रामिंग की फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, और जो लोग ऑलरेडी यूज़र इंटरफेस के ऊपर काम कर रहे हैं, वो मज़ीद अपने कैरियर को बूस्ट करना चाहते हैं और अपने कैरियर में, अपने प्रोफेशन में, अपनी जॉब में तरक्की करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत बेस्ट ऑप्शन होने वाला है कि आप PHP सीख कर आप यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनर से आप बैकएंड डेवलपर की तरफ जा सकते हैं। और वो लोग जो अभी तक इसमें काम नहीं कर रहे लेकिन अब वो इस फील्ड में आना चाहते हैं और कैरियर बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो सीरीज़ उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आई होप कि इसमें आप लोग इसको पसंद करेंगे, और मेरे चैनल ट्यूटोरियल ओशन को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए और साथ में मौजूद बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बहुत डिटेल के साथ हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल ट्यूटोरियल ओशन। जज़ाकल्लाहु खैरा फिद्दारैन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।